Good morning, guys. Welcome once again to our physics lectures. It is the 11th standards lectures. Yesterday we see about the Coulomb's law. In that Coulomb's law, we discuss about the first two major things which is related with the Coulomb's law. In that we discuss about the first one, that is the scalar form of Coulomb's law. The just brief explanation about the scalar form of Coulomb's law. The force of attraction or repulsions between the 2 point charges which is at a rest is directly proportional, which is directly proportional, here look at, directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. And this statement we can simply write like that: this F is directly proportional to Q1, Q2, that means they are product of these two charges, and this force is inversely proportional to the charges which is present at a distance of that square. That means force is inversely proportional to the square of the distance between these two charges. And we know very well, when we are remove the directly proportional sign, these directly proportional sign which is replaced by the sum of the constant, and here we use the k as the proportionality constant. So these proportionality constant, after that we see with the help of another one topic that is called as the dielectric constant. It is also known as the relative permittivity. And after the long explanations of the dielectric constant as well as relativity constant, or it is also called as the relative permittivity, we concluded that the ratio of epsilon to the epsilon 0 is called as the dielectric constant, and these relative permittivity or dielectric constant, which is denoted by a letter of k, with the help of these ratio we further find out the three major points. That means what is called as the k, or it is also here one mistake yesterday we have to clear, that is epsilon r, that is epsilon r. So this ratio are provided three major important points. The first one, with the help of this ratio we find out the permittivity absolute of the medium to the permittivity of free space. The second one, with the help of these constant we find out the ratio of forces of that charges when these charges is present in a vacuum to the presence in a medium. And finally, these permittivity constant or these relative permittivity or dielectric constant, it is also known as the specific inductive capacity. So it is just
one kind of the revised portion of our last lecture. Today we are going to discuss about our next lecture, the some of these points which is remaining from the last lecture. The third one and fourth one topic, that is the for not a topic, that is called as the 2 points. The first one today we will see, that is the definition of a unit charge. We know guys very well the charge which is shows in a coulomb, that means the unit of a charge, we show with the help of a coulombs, because we know the scientist Coulomb is investigate or it is introduce the all other properties of the charges. That's why in the honor of these investigate or the introduce of charge to our universe, so we providing the name of that Coulomb. इसको थोड़ा सा हिंदी में मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि जो चार्ज है, हम लोग कल से जो चार्ज देख रहे हैं या इसके आगे भी जब भी हम लोग ज़िंदगी में चार्ज देखेंगे, उस चार्ज का जो यूनिट है वो यूनिट हम लोगों को कूलम देना होता है। क्या देना होता है? कूलम देना होता है। अब ये कूलम चार्ज क्यों देना है? क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये जो साइंटिस्ट है, इन साइंटिस्ट ने जो चार्ज है उस चार्ज को सबसे पहले दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहले उसको क्या किया? इंट्रोड्यूस किया। और उसी के ऑनर्स में हम लोगों ने चार्ज को क्या कर दिया? यूनिट कूलम दे दिया। जैसे हम लोगों ने फोर्स है, फोर्स का इन्वेंट किसने किया? हम लोगों को पता है कि फोर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट बोलो या सबसे ज़्यादा जो रिसर्च की गई है वो फादर ऑफ फिजिक्स, दैट इज़ कॉल्ड एज द न्यूटन्स, इनके थ्रू हुई है। सो हम लोग जब भी फोर्स आता है तो इस फोर्स का यूनिट हम न्यूटन्स लिखते हैं। इस फोर्स का जो भी यूनिट हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? यूनिट लिखते हैं। तो उसी को लेके जो चार्ज है, उस चार्ज को जब यूनिट देने की बात की तो उस यूनिट को कूलम्स की ऑनर में उन्होंने उसका इन्वेस्टिगेशन किया, उन्होंने उसका संशोधन किया, उन्होंने उसको रिसर्च किया, उन्होंने उसको यूनिवर्स के सामने प्रेजेंट किया, इसलिए उस चार्ज को नाम दिया गया कूलम। तो अब हम लोगों को क्या सीखना है इस लेक्चर में? इस लेक्चर में हमें देखना है कि यूनिट चार्ज क्या होता है। तो यूनिट चार्ज क्या होता है ये देखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 2 पॉइंट चार्ज लेने पड़ेंगे। 2 पॉइंट क्या लेने पड़ेंगे हम लोगों को? यहाँ पे चार्जेस लेना पड़ेंगे। मानो ये वाला 1 पॉइंट चार्ज है, सिमिलरली यहाँ पे एक हम लोगों ने चार्ज ले लिया। अब ये तो चार्ज हो गए हम लोगों के पास। ये वाला जो चार्ज है फर्स्ट वाला, इसके ऊपर जो चार्ज है वो है Q1, इसके ऊपर जो चार्ज है वो है Q2, बराबर है। और ये दोनों जो चार्जेस है, इन दोनों चार्जेस में का जो डिस्टेंस निकल के आ रहा है वो है R। वो क्या है? R है। और अकॉर्डिंग टू द लास्ट इक्वेशंस which is comes from the our last point, that is called as the dielectric constant, इसके अंदर हम लोगों ने एक इक्वेशन निकाला था जो कि हमें बताता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब ये इक्वेशन कौन सा है? ये इक्वेशन हमारा बेसिक इक्वेशन है, F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इस K को हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने इस K को क्या किया? रिप्लेस किया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के लेकर। अब ये जो वैल्यू है, ये वाली, ये जो वैल्यू है जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, देखिए सर्कल नहीं, वो कुछ और ही बन गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, वो षटकोण बन गया। चलो दिखाई तो दे रहा है ना, समझ में आ रहा। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो होती है 9 × 10⁻⁻⁴
9 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मतलब जो एप्सिलॉन ज़ीरो है हमारा, ये वाला जो एप्सिलॉन ज़ीरो है हमारा, इस एप्सिलॉन ज़ीरो की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 सी स्क्वायर n रेस टू -1 और m रेस टू -2। अब इसको समझ लेते हैं, तो ये क्या है हमारा, ये एक प्रकार का हम लोगों ने निकाला हुआ एप्सिलॉन ज़ीरो की वैल्यू है। ठीक है, अब ये हो गया एप्सिलॉन ज़ीरो की वैल्यू यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशंस। ये एज इट इज़ बुक में दिया हुआ है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहूँगा, क्योंकि हमें पता है कि दो जो पॉइंट चार्जेस हैं हमारे, ये पॉइंट चार्जेस कहाँ रखे हुए हैं, फ्री स्पेस में रखे हुए, यानी वैक्यूम स्पेस में रखे हुए हैं। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया, एप्सिलॉन ज़ीरो लग रखा। अगर वाटर में वगैरह रखते तो उसको हम सिर्फ एप्सिलॉन लिख देते। तो यहाँ तक तो बहुत ईजी था, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ कि कुछ चेंजेस किए गए। अब मैं इसको नीचे लिखता हूँ। क्या किया गया, मानो इफ यानी क्या, समझो, मानो जो Q1 है, मतलब जो चार्ज है फर्स्ट वन पार्टिकल के ऊपर, वो इक्वल है सेकंड वन पार्टिकल्स के ऊपर। मतलब दोनों के दोनों को जो भी चार्ज मिला है वो सेम मिला है, और वो चार्ज आता है 1 कूलम। वो कितना आता है निकल के, 1 कूलम। और दो चार्जेस में जो डिस्टेंस आ रहा है वो है 1 मीटर, तो हमारा इक्वेशन क्या था, हमारा इक्वेशन ये वाला इक्वेशन, ये देखिए कहाँ गया, ये वाला इक्वेशन, ये वाला लिख लेते हैं इसको नीचे थोड़ा सा। क्या है इक्वेशन, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इसको रिप्लेस कर लो, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 की वैल्यू 1, Q2 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू 1, उसका स्क्वायर है। तो ये क्या होगा, ये हो गया 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1 हो गया। तो जो आपका जो फोर्स निकल के आ रहा है वो है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। ये आपका एक सिंपल सॉल्यूशन हो गया। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको डिफाइन करता है कि कूलम क्या होता है, और 1 कूलम क्या होता है। तो चलो इसको देखते हैं कि 1 कूलम किसको कहते हैं। ये तो सिंपल इक्वेशन था, हमारे समझ में आ गया होगा। इतने तो हम वीक स्टूडेंट्स नहीं हैं, थोड़े बहुत तो हम लोग अच्छे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, कुछ तो कर लेते हैं। सिर्फ इतना है कि लेक्चर्स नहीं करते, बाकी सब कर लेते हैं हम लोग। चलो अब डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है 1 कूलम की, थोड़ा सा कलर चेंज कर देंगे इसको हम, थोड़ा सा, ओके आ गया समझ में, ओके दैट्स। अब डेफिनेशन क्या कहती है कि 1 कूलम क्या होता है, 1 कूलम यानी एक चार्ज अमाउंट होता है, कुछ चार्ज होता है। जो चार्ज कुछ डिस्टेंस के ऊपर रखा होता है, समझो। अब इसको 1 कूलम चार्ज को समझना है हमको, 1 कूलम किसको कहते हैं वो समझना है। अब ये दो रेस्ट चार्ज ले लिया हम लोगों ने, बराबर है, कुछ अमाउंट वाले चार्ज ले लिए। ये दोनों में का जो डिस्टेंस है वो कैसा है, 1 मीटर इतना डिस्टेंस है, 1 मीटर इतना डिस्टेंस है, बराबर। और ये जो दोनों है, दोनों के ऊपर जो भी चार्ज है वो सेम चार्ज है। वो दोनों के ऊपर का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। मतलब इसके ऊपर चार्ज 1 कूलम है, इसके ऊपर चार्ज 1 कूलम है, बराबर है। इसके ऊपर चार्ज कितना है, 1 कूलम है। लेकिन ये हमें निकालना है, तो अब इसको कैसा निकालेंगे ये देखते हैं बच्चों। कि जो कुछ अमाउंट वाला चार्ज है, अगर वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आप रखोगे, जिसका डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर डिस्टेंस है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका और इसका जो मैग्नीट्यूड है, वो मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। और ये दोनों के दोनों चार्ज किस में रखे हैं हमने,
वैक्यूम स्पेस में रखे हैं, मतलब उसको कहते हैं हम लोग फ्री स्पेस में रखे हुए हैं, और ये दोनों के ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो होगा 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको कहना है 1 कूलम। इसको क्या कहना है? 1 कूलम कहना है। ओके, अब ये 1 कूलम की डेफिनेशन हो गई। इसको और अच्छी तरह से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अब इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ और इसको मैं और आपको अलग तरीके से समझा देता हूँ, क्योंकि आप में से बहुत से स्टूडेंट मेरे जैसे वीक हैं, समझने में थोड़ा टाइम लेते हैं। अगर दो चार्ज है हमारे पास, ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ये चार्ज 1 मीटर डिस्टेंस के ऊपर है, ये दोनों चार्ज के ऊपर का फोर्स अगर 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन है, तो ऐसे कंडीशन में इसके ऊपर का चार्ज होगा 1 कूलम। इसके ऊपर का चार्ज क्या होगा? 1 कूलम चार्ज होगा। इसको इसकी डेफिनेशन कहते हैं। बहुत इजी है बच्चों, टेंशन नहीं लेने का। ओके, नाउ अनदर वन पॉइंट। ये तो सिंपल था सर, ये तो हम आएंगे। अब अगला पढ़ा के बताओ। चलो अगला भी पढ़ाते हैं। अगला क्या है? अगला हमारा आता है कूलम्स लॉ, जो कि स्केलर फॉर्म में पढ़ लिया। अब आएगा वो हमारा वेक्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में आएगा? वेक्टर फॉर्म में। मतलब ये जो कूलम्स लॉ हम पढ़ेंगे, इस कूलम्स लॉ के अंदर हम उस चार्ज के मैग्नीट्यूड्स के डिस्टेंस देखेंगे और उसी के साथ उसका डायरेक्शन भी देखेंगे। अब बच्चों, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को हम लोग पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं, और फिर अगर टाइम बचता है हमारे पास तो हम लोग क्या करते हैं, एक या दो प्रॉब्लम सॉल्व करके लेते हैं। चलो अब इस डायग्राम को देखो सबसे पहले। अब ये जो डायग्राम आप लोगों को दिख रही है, इसके अंदर 2 पॉइंट्स आपको चार्जेस के दिख रहे हैं, जो कि पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी है। पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी है। ये दोनों पॉइंट के ऊपर जो चार्ज है, ए के ऊपर का जो चार्ज है वो Q1 है, और बी के ऊपर का जो चार्ज है वो चार्ज आता है आपका Q2। क्या चार्ज आता है? Q2। और ये जो दोनों के दोनों जो चार्जेस है, देखो इसको मैं कलर कर रहा हूं अलग सा, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, ये दोनों के दोनों चार्जेस कुछ डिस्टेंस पे सिचुएटेड किए हैं। मतलब इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को नाम दे दिया हमने R12। क्या नाम दिया इसको? R12 नाम दे दिया। मतलब देखो फिर से बोल रहा हूं, मतलब इसके ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट होगा, Q2 के ऊपर, वो कितना होगा? F12 होगा, और Q1 के ऊपर जो होगा वो होगा F21। देखो अलग अलग चार्जेस है, इसके ऊपर अलग अलग चार्जेस है। जो Q2 के ऊपर जो Q1 एग्जर्ट करेगा वो होगा F12, और वाइस वर्सा क्या होगा? F21। ये 2 चार्जेस, अरे उल्टा हो गया क्या? ओके, सॉरी बच्चों, फिर से देखो इसको। क्या कह रहा हूं मैं कि ये जो Q2 है, इस Q2 के ऊपर जो Q1 ने जो फोर्स एग्जर्ट किया वो कितना है? F21। Q1 ने Q2 के ऊपर, ये R को देख के गड़बड़ हो गया था थोड़ा, F21। और Q1 के ऊपर अगर Q2 ने जो अगर फोर्स एक्सर्ट किया है तो वो होगा F12। वो क्या होगा आपका? F12। चलो इसको समझ लेते हैं, ये तो इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अभी इसको हम पहले समझ लेते हैं बच्चों। चलो, अब हम लोगों ने क्या किया था कि ये जो, एक मिनट, इसकी डायग्राम अगर हमारे पास होगी ना तो उसको हम खींच के ला लेते हैं यहाँ पे। ओके, और बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो फोर्स एग्जर्ट किया है 2-1 बोले तो सेकंड वाले के ऊपर, सेकंड वन कौन सा हमारा? Q2। उसके ऊपर किसने किया एग्जर्ट? Q1 ने किया। वो वाला फोर्स देखते हैं। वो वाला फोर्स कैसा निकालेंगे? दोनों के दोनों चार्जेस किस में प्रेजेंट है? हमारे वैक्यूम में प्रेजेंट है, मतलब फ्री स्पेस में प्रेजेंट है। देखो बच्चों गौर से देखो, किस में प्रेजेंट है? फ्री स्पेस में। तो क्या आएगा वैल्यू? 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, अब देखो ये दोनों के भीतर का जो डिस्टेंस है वो देखना होगा। डिस्टेंस क्या है? अब
क्या है सेंटेंस हमारा, फिर से देखो सेंटेंस है हमारा, फिर से देखो सेंटेंस क्या बता रहा है कि डिनोट्स द फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2, Q2 के ऊपर फोर्स किसने एक्सर्ट किया, Q1 ने किया, तो इसका जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा R21। क्या आएगा, R21। देखो यहाँ पे ऑलरेडी बताया गया है R21, ये बुक्स की डायग्राम नहीं है, ये नेट पे से ली है, इट इज़ अ परफेक्ट डायग्राम, बुक से भी परफेक्ट डायग्राम है R21। अब हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेंज करना है हम लोगों को, हम लोग देख रहे हैं वेक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म देख रहे हैं, वेक्टर फॉर्म। तो इसको मॉड ऑफ स्क्वायर में डालना इनटू, ये हो गया R कैप 21। और हम लोगों को पता है अगर हम कुछ कैप देते हैं तो ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी आपकी होगी, दैट इज शोज एट द यूनिट वेक्टर, दैट इज शोज एज द यूनिट वेक्टर। ये सिंपल है। और ये यूनिट वेक्टर किसका है, अलोंग दी ए बी, अलोंग दी ए बी। मतलब अगर आप बी पॉइंट से दूर जा रहे हो तो हम लोग यूज करते हैं R21, R21। अगर ए पॉइंट से दूर जाएंगे तो हम लोग यूज करेंगे R12, हम लोग क्या करेंगे R12। चलो इसको भी देख लेते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया था कि जो हमारा चार्ज था Q2 के ऊपर एग्जर्ट किया था किसने, Q1 में। अब इसको उल्टा करते हैं, अब Q1 के ऊपर चार्ज एग्जर्ट होगा किससे, Q2 से एग्जर्ट होगा। तो इक्वेशन क्या हो गया, F12 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R12 स्क्वायर इंटू R12 क्या। ये क्या हो गया, ये फिर से हमारा यूनिट वेक्टर हो गया, लेकिन ये यूनिट वेक्टर अलोंग किसके हो गया, बी ए के अलोंग हो गया। ये यूनिट वेक्टर जो होगा ये वाला, ये अलोंग दी ए बी वेक्टर होगा और ये होगा बी ए वेक्टर्स। ये बात ध्यान में रखनी है। मतलब ये जो दो वेक्टर्स है हमारे पास, अब दो क्वांटिटी मिली हम लोगों को फोर्स की, एक मिल गई F12 और एक मिल गई F21, बराबर है। ये दो क्वांटिटी मिली, इस दो क्वांटिटी के अंदर हम लोगों को एक बात पता है कि R12 और R21 ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ये एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब R12 जो है वो अपोजिट में आएगा R21 के। और ये जो निगेटिव साइन है, ये निगेटिव साइन हमें वही इंडिकेट करता है कि आपका जो R12 है उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में R21 है। अगर आप डायग्राम देख पाओगे तो देखो R12 और R12 आपका इस डायरेक्शन को जा रहा है और R12 आपका इस डायरेक्शन को आ रहा है। ये R21 है, ये R12 है। मतलब ये दोनों के दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। कैसे है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये सिंपल बात। अब ये जो दो इक्वेशंस है, इस दो इक्वेशंस के अंदर क्या हो गया कि R12 को तो माइनस साइन नहीं मिला, लेकिन किसको मिल गया, इसको मिल गया। तो ये इक्वेशन हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12। और ये दोनों के दोनों किस में है, वेक्टर फॉर्म में। किस में है, वेक्टर फॉर्म में। तो ये जो दो चार्जेस है, ये दो चार्जेस क्या बताते हैं हमें, ये तो एक तो इक्वल मैग्नीट्यूड में है, ये दोनों के दोनों चार्जेस किस में है, इक्वल मैग्नीट्यूड में है, लेकिन उनका जो डायरेक्शन है, मतलब डायरेक्शन, मैं उसको डायरेक्शन बोलता हूं, उसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कैसा होगा, अपोजिट होगा। कैसा होगा, अपोजिट होगा। ये बात तो समझने जैसी है। अपोजिट क्यों है, क्योंकि हमें पता है इस कंडीशन में R21 और R12 कैसे एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के कैसे है, अपोजिट है। चलो अब ये सिंपल हो गया, ये सिंपल हो गया। और ये जब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और इनकी जो ज्वाइनिंग लाइन ज्वाइनिंग होती है दो चार्जेस के, इसको हम लोग सिंपली बोलते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि ये दोनों के सेंट्रल फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसको सेंट्रल फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक मिनट में इसको रफ कर लेता हूं। अब ये हो गया हमारा कूलम्स लॉ। अब इस कूलम्स लॉ के अंदर हम लोगों ने क्या किया कि दो जो है हमारे दो कल वाले पॉइंट, जो कि एक कूलम्स लॉ स्केलर फॉर्म में बता रहा था और दूसरा हम लोगों ने निकाला था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट
और आज के जो 2 पॉइंट है, मतलब कौन से 2 पॉइंट, एक कि यूनिट चार्ज की जो डेफिनेशन है वर्ग कूलम को लेके वो वाली, और अभी वाला ये जो इक्वेशन है वो वाला इक्वेशंस, ये दोनों के दोनों हम लोगों ने सीख ली। मतलब हम लोगों ने 4 पॉइंट पढ़ लिया आज टोटल, क्योंकि तो मैंने रिपीट किए थे। अब हमारे पास बचा हुआ जो टाइम है उसके अंदर हम लोग क्या कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि आपके बुक में निकल के आ रहा है 10.3 वाला। अब ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा पेचीदा बनाया गया है। अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले आपको क्या बताया गया कि कैलकुलेट कीजिए, देखो मैं सीधा एक्सप्लेन करता हूं, कैलकुलेट कीजिए और कंपेयर कीजिए। किसको किसको कंपेयर करना है, देखो बच्चों, कैलकुलेट एंड कंपेयर। एक जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, और दूसरा जो आपका ग्रेविटेशन फोर्स है, उन दोनों को आपको कंपेयर करना है, कैलकुलेटर करना है, बराबर है। अब इसके लिए हम लोगों को क्या दिया गया, 2 प्रोटॉन्स दिए गए हैं, 2 प्रोटॉन्स दिए गए हैं, और ये 2 प्रोटॉन्स के अंतर का जो डिस्टेंस है वो निकल के आ रहा है 10⁻⁻15 मीटर, और g दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कि दिया है हमको 6.674 इंटू 10⁻11 मीटर क्यूब kg⁻⁻1 s⁻⁻2, और मास ऑफ प्रोटॉन ये दिया गया है हम लोगों को 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब हम लोगों को निकालना है सबसे पहले, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स निकालना है, एक क्या निकालना है हम लोगों को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, और दूसरा क्या निकालना है हम लोगों को, दैट इज कॉल्ड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ताजुब की बात है, दोनों भी अब से बताते हैं। लो भैया, ये एक तो हमें अकल आ गई, दोनों किससे बताते हैं, फोर्स से। क्या सर आप भी बच्चों जैसा मजाक कर रहे हो, यहाँ पे भी फोर्स है, यहाँ पे भी फोर्स है, मतलब फोर्स निकालना है तो अब से ही डिनोट हो गया ना। हाँ बच्चों, इतने तो होशियार बन गए हो आप मेरे साथ रह के, चलो ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला इक्वेशन क्या कहता है हम लोगों को, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R², और ये वाला क्या कहता है, Gm1 m2 डिवाइडेड बाई R²। ये मैंने कल पढ़ाया था, भूलना नहीं है हम लोगों को, मैंने कल पढ़ाया था, बोल नहीं सकते हो आप सर ने पढ़ाया नहीं था। चलो, इसकी वैल्यू हम लोगों को पता है 9 इंटू 10⁻⁹। अब बोलोगे सर कहाँ पता है, अरे बच्चों निकाली है वैल्यू यहाँ पे, इसकी बदनाम कर देते हो, निकाल दी वैल्यू इसकी यहाँ पे, अभी तो निकाली थी यार आज ही के लेक्चर में। देखो, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी 9 इंटू 10⁹। ओके, अब इसके ऊपर जो चार्जेस है वो चार्जेस है, क्योंकि जो प्रोटॉन दिया है, जो 2 प्रोटॉन दिए हैं वो दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों के चार्जेस सेम है। तो चार्ज कितना होता है प्रोटॉन के ऊपर, सिंपल 1.6 इंटू 10⁻⁻9, ये पहला वाला, ठीक है। अब दूसरा वाला पकड़ लीजिए, क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, कितना है, कितना पार्ट बताया हम लोगों को, ये बताया 10⁻, और कुछ है 10⁻⁻15 मीटर का स्क्वायर, ये बता दिया। तो ये इक्वेशन बहुत सिंपल हो जाएगा, 9 इंटू ये 1.6 इंटू 1.6 बराबर है, ये एक बार ले लो, ये एक बार ले लो, इंटू ये वाला 10⁻9 इंटू 19, और 19 कितना होता है, गिन लो भैया 19 का पाड़ा, टेबल गिन लो भैया, ये हो गया -38 इंटू, और ये 15 और 15 30, और ये नीचे वाला ऊपर लेके आइए, ये हो जाएगा +30, तो ये हो गया 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 39, ये 9 और 30, 39 माइनस 38, तो ये हो गया -1 आएगा ना, 19 9 18,
एक 38 और ये 1 आएगा, ये आ गया 1, +1 आएगा ना, वैल्यू तो प्लस है। ये 30 और ये 39, 39 माइनस 38 कितना आ गया बच्चों? 1। भैया चले गए पहली के क्लास में, फर्स्ट स्टैंडर्ड में। ओके, तो ये इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा डायरेक्ट बता लेता हूँ मैं आपको। इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 2.3 इंटू 10⁻² न्यूटन। ये अरेंज करके -1 का 2 हो गया, इसको अरेंज कर लिया हम लोगों ने। ओके, ये क्या था? हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स था। अब कौन सा फोर्स निकालना है? ग्रेविटेशनल। कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। फार्मूला क्या है बच्चों? F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ओके, मास G कितना है? 6.674 इंटू 10⁻11 इंटू 1.6 इंटू 10⁻27 इंटू 1.6 इंटू 10⁻27 67 है, ये मास है, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू 10⁻27 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, वो फिर वही आएगा 12 का स्क्वायर। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लो। 6.674 इंटू 1.67 इंटू 1.67 इंटू -27 -11 और ये जो नीचे वाले जो है ये वाले भैया -30 वाले, इसको ऊपर लेके जाओ, इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा 10⁻, देखो यहाँ पे कर लो 27 27 4 5 और फिर -11 5 6, ये हो गया -65 और ये +30 कर लो 5 30, ये हो गया 10⁻35। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आंसर निकल के आएगा, ये माइनस है ना भैया, -35, जो आंसर निकल के आएगा वो होगा आपका 1.86 इंटू 10⁻34 न्यूटन। 1.86 इंटू 10⁻34 न्यूटन। अब हम लोगों को कंपेयर करना है, कौन सा? ये वाला आंसर और ये वाला आंसर। किसको क्या ये करना है कंपेयर? इलेक्ट्रिक फोर्स को कंपेयर करना है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ये क्या हो जाएगा? 2.3 इंटू 10⁻² न्यूटन डिवाइडेड बाई 1.86 इंटू 10⁻34 न्यूटन। 32 आ जाएगा। और ये जो इक्वेशन है 1.23 इंटू 10⁻36 आ गया। न्यूटन कैंसिल हो गया, यूनिट रहेगा क्या? नहीं रहेगा चचा। ओके, तो ये क्या था? ये था हमारा सिंपल कंपैरिजन्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। सिंपल एक्सप्लेनेशन। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ 10.3 जो कि हमारे बुक्स में दिया गया है। और आपका कूलम्स लॉ जो है वो यहाँ पे समाप्त होता है बच्चों। और इस कूलम्स लॉ को नज़रअंदाज मत कीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट कूलम्स लॉ है। इसको थोड़ा सा मैं आपको और एक बार बता देता हूँ कि सबसे पहले वाला जो पॉइंट है, इसके अंदर हम लोगों ने स्केलार फॉर्म देखा। स्केलार फॉर्म के अंदर हम लोगों ने इसका जो फार्मूला निकाला था वो था फोर्स इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और ये कांस्टेंट लिया था। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? दैट इज कॉल्ड एज द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी देखा था, जिसके अंदर हम लोगों ने K का इक्वेशन सॉल्व किया था। उसी को हम लोगों ने एप्सिलॉन R बताया था, वो था एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। और इसी को हम लोगों ने बताया था F वैक्यूम डिवाइडेड बाई F मीडियम। तीसरा जो हम लोगों ने देखा, जो कि डेफिनेशन थी यूनिट चार्ज की, जो कि 1 कूलम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए थी, ये हम लोगों ने देखा। इसके अंदर हम लोगों ने फोर्स भी निकाला जो था 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन, सिंपल वन। और जो लास्ट वन देखा था हम लोगों ने देखा वेक्टर फॉर्म देखा था। इसके अंदर हम लोगों ने F12 और F21 के 2 इक्वेशन सॉल्व किए थे।
और लास्ट में हम लोगों ने बताया था कि F12 और F21 इसमें एक नेगेटिव साइन आता है जो कि बताता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो इसको हम अपोजिट वेक्टर की तरह भी देख सकते हैं। सो बच्चों, ये था आपका स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, यूनिट चार्ज की डेफिनेशंस और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है, कुछ भी दिक्कत आती है, तो यू हैव माई नंबर, प्लीज़ कॉल मी, मैसेज मी, मैं आपका प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व कर दूंगा, या सिर्फ कमेंट कर दो, उस कमेंट्स को लेकर मैं आपको आंसर बता दूंगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर्स एंड एंजॉय योर सेल्फ। सो कोविड बढ़ रहा है, प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।